الحمد لله نحمده ونصلي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات قدس لکھاں کروڑا درود و سلام انگنت بے شمار لاکھ ادا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے درود خضری شریف۔ درود خضری شریف اس کا چلہ کس طرح کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود خضری شریف جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور کس کس نے یہ درود شریف پڑھا۔ اولیاء کرام میں سے یہ درود شریف کس نے پڑھا؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ جو درود خضری ہے یہ بہت ہی کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ درود خضری بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو درود شریف ہے میاں شیر محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو باکثرت پڑھا اور آپ کے مریدین نے بھی اس کو باکثرت پڑھا، اور جو بھی آپ سے مرید ہوتا تھا، آپ کے سلسلے میں داخل ہوتا تھا، حلقہ احباب میں داخل ہوتا تھا، آپ اسے درود خضری پڑھنے کا وظیفہ دیتے اور درود خضری پڑھنے کی تاکید کرتے، اپنے مریدین کو درود خضری کی تلقین فرماتے، اور آپ کا جو معمول تھا روزانہ درود خضری شریف کا 5000 مرتبہ روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، بلکہ یہاں تک آپ نے تو یہ فرمایا یہ اسم اعظم ہے۔ درود خضری فرمایا یہ اسم اعظم ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا، جس نیت سے پڑھے گا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب فرماتا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا اگر کوئی 400 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، 400 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ، تہجد کے وقت یا سوتے وقت 400 مرتبہ، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو درود خضری ہے اس کے بارے فرماتے ہیں، اس کے پڑھنے والا جو ہے درود خضری، اس کے جو پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کی جو تربیت ہے درود خضری کی برکت سے، اس کی جو درود خضری کو پڑھتا ہے، جو طالب علم ہے، روحانی طالب علم ہے، اور جو درود خضری پڑھتا ہے، اس کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرماتے ہیں، نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام کے زیر سایہ کر دیتے ہیں۔ یا خضر علیہ السلام خود تربیت فرماتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ یہ درود خضری ایسی چیز ہے۔ اور جو درود خضری ہے فقیر محمد چورائی، چورا شریف والے فقیر محمد چورائی، نور محمد چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی کثرت سے پڑھتے تھے اور ان کے مریدین بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور یہی درود خضری پیر جماعت علی شاہ علی پور صدر شریف والے آپ بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور آپ کے سلسلے میں یہ بہت ہی رائج تھا، بہت زیادہ یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا، اپنے مریدوں کو تلقین فرماتے تھے۔ حافظ عبد الکریم صاحب پنڈی والے، عیدگاہ شریف والے، وہ بھی درود خضری ہی کی اجازت فرماتے تھے اور درود خضری ہی پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اور یہی درود خضری صوفی نواب الدین موری شریف والے، خواجہ معصوم صاحب کے والد صاحب خواجہ معصوم صاحب، خواجہ نواب الدین خود بھی اللہ کے ولی تھے، اور خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی اللہ کے ولی ہیں۔
वो भी दुरूद खिजरी की इजाजत फरमाते थे और ज्यादा कसरत फरमाते थे। इसी तरीके से सईद इस्माइल शाह बुखारी कर्मा शरीफ वाले आप भी दुरूद खिजरी पढ़ते थे और अपने मरीदों को भी तलकीन फरमाते थे और फरमाते थे ये कसरत से पढ़े, ये इसमें आजम है। गमगोल शरीफ वाले जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला वो भी दुरूद खिजरी ही पढ़ते थे और ज्यादा पढ़ने की तलकीन फरमाते थे। जितने सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे वो ज्यादा दुरूद खिजरी पढ़ते थे और दुरूद खिजरी की बरकत से ही डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमत और रहमान जो अल्लामा का लफ्ज उनके साथ लगा, उनके नाम के साथ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम के साथ जो अल्लामा लिखते हैं, उन्होंने कोई दरस निज़ामी नहीं पढ़ा। उन्होंने दरस निज़ामी जो 8 साल कोर्स करते हैं, 8 साल 10 साल या 12 साल कोर्स, उन्होंने किसी मदरसे में नहीं किया, किसी उस्ताद से दरस निज़ामी नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर अल्लामा इकबाल क्यों कहते हैं? हाँ, इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक दोस्त था, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ ही वो पढ़ता था, क्लास फेलो थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमत और रहमान जो है, इनके कोई 2-4 नंबर ज्यादा थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और वो जो डॉक्टर आपके साथी है उसके 2-4 नंबर कम थे, लेकिन इनको डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते थे, उसको खाली डॉक्टर बोलते थे। उसने डॉक्टर अल्लामा इकबाल से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपको अल्लामा कहते हैं, आपने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, इस तरह के आलिम कोर्स की 8 साल कोर्स है, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्न माजा शरीफ है, दाऊद शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, ये दौरा हदीस आखिरी साल में जो पढ़ाया जाता है, और पहले साल में जो सर्फ पढ़ाई जाती है, नाहू पढ़ाई जाती है, दूसरे साल में पढ़ाई जाती है, तीसरे साल में पढ़ाई जाती है, काफिया वगैरह पढ़ाई जाती है। आपने तो कोई कोर्स नहीं किया, आपको अल्लामा क्यों कहते हैं? अल्लाह। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद खिजरी, कौन सा दुरूद खिजरी 1.25 करोड़ मरतबा मैंने पढ़ा है। उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे हकीमुल उम्मत बनाया और उसी की वजह से मुझे अल्लामा इकबाल कहते हैं। दुरूद पाक की बरकत से अल्लामा कहते हैं। ये अल्लामा वाला लफ्ज जो है, फिर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपने दोस्त से कहा, मैंने तो 1.25 करोड़ मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मैंने दुरूद पाक पढ़ा है 1.25 करोड़ मरतबा। आपने क्या पढ़ा है? उसने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा इसीलिए आपके नाम के अल्लामा नहीं, अल्लामा इसी वजह से है कि मैंने दुरूद शरीफ मैंने 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ा है। अब वो कितना पढ़ते थे? वो 10,000 मरतबा रोजाना पढ़ते थे। इसी वजह से आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते थे। किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा, फिर भी उनके पास जो इल्म है, उनकी शेर व शायरी है, वो दुरूद पाक की बरकत से है। ये है दुरूद पाक। तो दोस्तों, ये जो दुरूद पाक है, अब चलते हैं दुरूद पाक के चिल्ले की तरफ। इसके 3 तरीके मैं बताऊंगा आपको। अगर कोई चाहता है मेरी रूहानी खुल जाए, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी पाक की आल औलाद की ज़ियारत हो, मुझे मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए, मुझे मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए, मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, नबी पाक का कुर्ब मिल जाए, नबी की आल औलाद का कुर्ब मिल जाए, इमाम हसन की ज़ियारत हो जाए, इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, अली पाक की ज़ियारत हो जाए, नबी की आल औलाद की ज़ियारत हो,
नबी पाक के सहाब की जियारत हो, सहाबा कराम की जियारत हो। ये ऐसा जामे दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। इसमें नबी पाक का भी पहले खुदा का जिक्र है, फिर नबी पाक का जिक्र है, फिर इसमें नबी पाक की आल का जिक्र आया, और इसके बाद फिर सहाबा कराम का जिक्र आया। ये ऐसा जामिया दुरूद पाक है। इसलिए तो मियाँ साहब छापो शरीफ रहमतुल्लाह तआला वाले फरमाते थे, ये इसमें आज़म है, आपने इसको बाकसरत पढ़ा है। तो जो भी दोस्त चाहता है मेरा कारोबार सही हो जाए, जो जादू की वजह से परेशान है, जिन्नात की वजह से परेशान है, घर में नचाकी है, लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानी है, आवाजारी है, रोजी रिज़्क में बरकत नहीं, अगर कोई चाहता है मेरी रोजी में बरकत हो जाए तो दुरूद खिजरी पढ़े। अगर कोई चाहता है जिन्नात वाला मसला है मेरे घर में तो दुरूद खिजरी पढ़े। अगर किसी के कुछ जादू टोने का मसला है वो दुरूद खिजरी पढ़े। नजर बद है तो दुरूद खिजरी पढ़े। कारोबार नहीं चलता दुरूद खिजरी पढ़े। कोई भी काम दुनिया कायनात का है वो क्या करे, दुरूद खिजरी पढ़े। दुरूद खिजरी बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक, जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जात उसके बुलंद कर देता है। आप देखें दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, कोई भी आप इबादत करेंगे ना तो जो दाएं करने वाला फरिश्ता है वो नेकी लिखता रहेगा, लेकिन वाहिद दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं, दाएं कंधे वाला और बाएं वाला, दोनों करामन कातिबीन यालमून मा तफ़अल, दोनों फरिश्ते जो करामन कातिबीन है, दोनों फरिश्ते जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं। कैसे? एक मरतबा दुरूद पढ़ा तो 10 गुनाह माफ हो गए। अब जो दाएं कंधे वाला है वो नेकी लिखने शुरू कर देता है, जो बाएं कंधे वाला है वो गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। दुरूद पाक ऐसी इबादत है। एक इसके जिमन में एक और बात याद आ गई, हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तो आप परेशान हैं, अपनी उम्मत के गम में गमगीन है, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। तो बस इतना वक्त गुजरा, चार फरिश्ते जो हैं मुकर्रबीन जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, चारों जो फरिश्ते हैं वो नीचे आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आदमी आप पर 10 मरतबा रोजाना का सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है 10 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो आप पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा जो है पुल सरात पर मैं उसको अपने परों पर बैठाकर उसको पुल सरात पार कराऊंगा। और उसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पर दुरूद पाक पड़ेगा हौज़े कौसर पर मैं उसको पानी पिलाऊंगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पर दुरूद पाक पड़ेगा मैं उसकी जान इस तरह से निकालूंगा जिस तरह नबियों की जान में निकालता हूं। यानी दुरूद पाक की इतनी बरकत है। तीसरी हदीस याद आ गई, हजूर अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद पढ़ता है वही दुरूद जो है उसी कब्र में जाएगा, या मुनकर नकीर सवाल जवाब के लिए आते हैं, वही दुरूद नूर बनकर आगे खड़ा हो जाएगा, ढाल बन के वो सवाल जवाब करेंगे, वो दुरूद पाक खुद ही उनके सवाल जवाब और बाज फरमाते हैं उनके कान में बताएगा। और जब वो चले जाएंगे मुनकर नकीर तो वही दुरूद जो है वो नूर बन के उसकी कब्र में क़यामत तक रहेगा। वो दुरूद पाक कहेगा कि तूने मुझे पढ़ा है और मैं तेरे साथ हूं क़यामत तक, जब तक माशर का मैदान नहीं लगता मैं तेरे साथ। ये ऐसा दुरूद पाक है। तो इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका है 313 मरतबा पढ़े 40 दिन, और दूसरा तरीका है
1100 मरतबा पढ़ें 40 दिन। तीसरा तरीका है 3300 मरतबा पढ़ें 40 दिन। और चौथा तरीका अगर करना है तो फिर वो थोड़ा सा उस आदमी के लिए है जिसने कोई पहले चिल्ला या वजीफा कोई अमल किया हुआ है, ये उसके लिए है। 12,500 पढ़े, फिर इसका टाइम मगरिब के फौरन बाद उसको बैठना पड़ेगा, सुबह की अजान से पहले पहले 12,500 मरतबा पढ़े। और इसके दौरान ऐसे ऐसे अजाबात नजर आते हैं, ऐसे ऐसे मकामात नजर आते हैं, इसके दौरान ऐसी ऐसी जियारतें होती हैं जो बयान करने से बाहर है। इससे रूहानियत भी नसीब होती है, और जिसे हम बातनी आंख कहते हैं, बातनी आंख जिसे कहते हैं, जिसे हम बातनी आंख कहते हैं, वो भी इससे खुलती है। तीसरी आंख भी कहते हैं, बातनी आंख भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर को तो तीसरी आंख देख सकती है, ये ज़हरी आंख नहीं देख सकती। अब इसका तरीका क्या है, इससे फायदा क्या होगा? तरीका पहले बताते हैं, फिर फायदा बाद में बताएंगे। तरीका इसका यह है कि जगह पाक हो, जगह एक हो, मसल्ला एक हो, तस्बीह एक हो, कपड़े एक हो, जो आपने कपड़े पहने वो एक हो। और इसको नचनी जुमरात से शुरू करें। अगर नचनी जुमरात निकल जाए तो पहले शुरू करना चाहे तो किसी भी जुमरात को आप शुरू कर सकते। शुरू करने से पहले 2 नफल हाजिर के पढ़ें, और जब आपका वजीफा मुकम्मल हो जाए फिर आप पढ़ें, फिर आप 2 नफल पढ़ें कामयाबी के, और दुआ करें, और कोई मीठी चीज पकाकर फाते पढ़े, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत्म शरीफ इसका सवाब पेश करें, और पाकिस्तान पाक को तरतीब के मुताबिक सहाबा कराम को, औलिया करम साहब को पेश करें, खास खिज़र अलैहिस्सलाम को पेश करें, और फिर दुआ करें इंशाअल्लाह। फिर इसके साथ आप कोई भी काम ले सकते हैं, इशार करना वो भी कर सकते हैं, जिन्नात निकालने वो भी निकाल सकते हैं, जादू टूने का इलाज करना वो भी कर सकते हैं। यानी ये ऐसा सरदार वजीफों का वजीफा, सरदार वजीफा है, दुनिया कायनात का, दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा, दुनिया कायनात का सबसे बड़ा वजीफा, क्योंकि दुरूद पाक ऐसा वजीफा है जो खुदा खुद भी दुरूद पाक पढ़ता है, और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और अल्लाह ने खुद फरमाया मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी पढ़ो। अब खिताब ईमान वालों से है, तो ये ऐसा दुरूद पाक है, अगर कोई दोस्त इजाजत लेना चाहे वो पर्सनल भी इजाजत ले सकता है, लेकिन हम उस सबको इजाजत देते भी हैं, सबके सामने हम इजाजत देते भी हैं। अगर कोई अलहदा लेना चाहे तो पर्सन ले ले, लेकिन फिर भी इजाजत हमारी तरफ से, कोई अमल करना चाहे, अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट्स में बताए, कोई चीज कोई सवाल पूछना है, कोई चीज समझ ना आए उसमें पूछ सकता है। अल्लाह ताला के हजूर दुआए अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैहि इल्लल